नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी आरकेबी और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नंबियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और हम दोनों हैं कहां पर? नेशन नाउ पर। और नेशन नाउ कहां है? हमेशा आपके साथ और हमेशा ही आपके साथ रहेगा। आप सबको जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। So Pradeep ji, the Prime Minister has launched the BJP's election campaign. एग्जैक्टली सर। मतलब पहले उन्होंने छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में बिल्कुल बिल्कुल सर। एक तो जबरदस्त तरीके से ना जाने कितने प्रोजेक्ट लॉन्च किए और दूसरी चीज है हर जगह पर जाकर के कांग्रेस की जो खामियां हैं वो सामने लेकर के आए। और अभी तो राजस्थान में वो कन्हैयालाल जी जो बिल्कुल उनको भी इन्वोक कर जिनका दिया। कत्ल हो गया, वो रेप केसेस, द रेप कैपिटल, आई मीन crimes against women the highest in Rajasthan. That's what the Prime Minister says. Well, but his own government says something else. I mean, his own Home Ministry has released figures of rapes, and the maximum rapes have taken place in Madhya Pradesh, according to the NCRB, which is, by the way, part of the Union Home Ministry. So we got the Prime Minister. So maybe the Congress will have something to say about that. But it is absolutely true that there has been a surge in crime against women in Rajasthan. On that there is no doubt. Rajasthan was always a very unsafe state for women. शुरू से आज तक कोई नई बात नहीं है। और यहाँ पर एक बार फिर जो राजस्थान में शुरू हो गया है प्रदीप जी, महिलाओं के खिलाफ जितने जुर्म हो रहे हैं, it's shameful. Genuinely speaking, it is absolutely shameful. Whether it is Madhya Pradesh or Rajasthan, it is not as if more rapes have taken place over there and less have taken place here. The Any crime against women is bad. It's terrible. It's absolutely awful. And the way the politicians are disagreeing with each other, the way they are hitting out at each other over crimes against women, that debate in itself is somewhat disgusting, very frankly. But any state or country where the women are protected, in fact, that is they believe it. I remember when your association with Balasaheb Thackeray was absolutely fine. Very good relationship with Balasaheb Thackeray ji. And 1995 when he came, he says, I would like Maharashtra and Mumbai to be a place where women can go skimpily dressed even at midnight and nothing happens to her. Yes. So everything was centered around the safety of women. I mean, it came first paramount for and that any government. And that was the time when Maharashtra was the number one state in every category. Yes. In India. The fact remains, it has been seen over the last 100 years. A state or country which respects its women is usually a very well developed state. People are happier, the incomes are very good, and other crimes are also much, much less. I don't know why, as far as India is concerned, somehow or the other we've always been somewhat lacking in this area. It's not just over here, it's practically everywhere. Except, of course, in the south. The south, the conditions are somewhat safer, I think. But it is all centered around a woman. If a woman feels safe in a city, in a state, in a country, then you presume that things are in order. Law and order is in order. Safety is in order. Security is in order. So everywhere it's all centered on women. And then yes. Especially all these states take pride in saying, where development is concerned, woman-centric. I mean, woman has, what is the place of woman in any society, a city or state, how they are treated, as you said very well. As they say, you educate a boy, you give him a job, you are educating one individual. You educate a woman, you are educating an entire family. You empower a woman and the entire family gets empowered. Yes. You're absolutely right. That's what happens. And I thought the BJP at one time used to be completely and totally loyal to the idea of protecting women, of uplifting women. And now the one person who seems to have worked very hard towards it is, of course, our friend Arvind Kejriwal. He was the first person really to introduce stipends for women, free travel for women, and so on and so forth. And of course all that's been copied now by other people. I hope
the same thing applies everywhere else also. But where the empowerment of women is concerned, Congress says that it has done the most where empowerment. The first union cabinet woman, they got it. The first probably chief minister woman, they got it. The first woman prime minister, the Congress. So where empowerment of women is concerned, the Congress believes that So the first chief they are minister, unbeatable. तो पहली चीफ मिनिस्टर मतलब नंदिनी सतपथी, I think she was the first Odisha chief minister if I am not mistaken, and the first health minister of India was Rajkumari Amrit Kaur. जहाँ तक मुझे याद है. Yeah, she was the only woman in Nehru's cabinet at that time. And after that, of course, there were lots and lots of other women who came in. They say the first governor, Sarojini Naidu, Vijay Lakshmi Pandit, the first UN representative, woman representative, first CM was Sucheta Kriplani as per Yes. Congress from Sucheta Uttar Pradesh. Kriplani from Sucheta, UP. Sucheta Kriplani from UP. First Lok Sabha speaker was a woman, that is Meera When was Kumar. I somehow seem to doubt that. Sucheta Kriplani, but she must have been an interim chief minister as far as I remember. जो भी interim भी है तो chief minister तो है ही नहीं sir. I mean, so the Congress claims it. I mean that's Yes. a Congress Twitter. So right from Amrit Kaur, Rajkumari Amrit Kaur, from the first governor Sarojini Naidu, first UN representative Vijay Lakshmi Pandit, first CM Sucheta Kriplani, Uttar Pradesh, Lok Sabha Speaker Meera Kumar, and the first The- Prime Minister, yes. ladies. And the Indira first Gandhi. woman president. Yes. Let's Indira not forget Gandhi. her. Yes. Absolutely. So they have been empowered by empowering women. They claim the Congress, well, no other party can boast so much. You're absolutely right. She was the first female chief minister serving from 1963 to 67. Now that's not interim. So I was wrong. So No, she even was if the it is first- an interim, she is the chief minister. She was the chief minister for 4 Yes, years. yes. 4 years. I mean that's huge. J.B. Kriplani's wife, fantastic, absolutely fantastic. She herself was of course from Bengal, but she was married to Acharya Kriplani. Now that's what they say. But after that, what happened? I mean, they are still empowering women. I mean, they have women in I think every walks of life, wherever. Sonia Gandhi, whatever you call her, she is a woman. Yes, and the longest serving president of the Congress. बिल्कुल sir. जी दुरुस्त बात और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है प्रदीप जी कि आप देखें जो कांग्रेस की जो प्रेसिडेंट रही हैं पुरानी उसमें महिलाएं कितनी हैं आप ये देखिए ना एनी बेसेंट से लेकर के सोनिया गांधी तक बीच में इंदिरा जी भी रहीं बाकी बहुत अलग अलग महिलाएं रहीं द बीजेपी बाय द वे हैज नॉट हैड अ सिंगल वुमन प्रेसिडेंट भारतीय जनता पार्टी का पार्टी अध्यक्ष आज तक कोई महिला नहीं रही है But अगर देखा जाए तो But you should give credit where it's due for the BJP. It can be the most democratic party ever. You know, none other president, as Nitin Gadkari used to say that any other party, you can even a small kid will tell you who's the next next president. Yes. It's because it's dynastic politics. He'll say the kid will say that yes, it is Supriya Sule. Now Ajit Pawar has hostile taken over, but Mulayam Singh too. So everybody knew who's going to. For BJP, he says, even if he was a president then, I think, he said, even if I'm the president, I don't know who's going to be the next president of the And he party. was absolutely right. He didn't know. And that has been a tradition. That has been a tradition. And you can't find fault there. I mean, it's amazing how they run the party. You know, if it's a totalitarian, if it's Parivarvad, as you say, there's a direction. There's unidirection where the chief says then and the whole party moves. But in a democratic setup, I mean, how is it run? It's a mystery, and in fact, it's a matter for deep study for decades how the BJP has managed to survive and prosper. जी दुरुस्त बात, absolutely. Because the president, he knows that his term is only one term, and in the बीच में 2 term कर दिया था. So after that, there's no term. So what happens? I think the biggest thing is because it is probably affiliated to the RSS, and the RSS has a hold over the party. Their policies are the BJP's policies mostly. So it's the RSS that shows the direction जी and has a say in the who's going to be the president of the party. But then it's a democratic setup where you can't claim it dynastic politics. Now, No, Congress से पूछे तो बोले let's dynastic. take a look at the Congress women presidents. There was Annie Besant, that was way back in 1917, and then of course there's Sarojini Naidu. She was also the president of the Congress party,
and then after that, of course, Indira Gandhi, and then Sonia Gandhi. So you've had 4. But 4 president हो चुकी हैं. You call it dynastic. आप परिवारवाद बोले कुछ भी बोले, but they were presidents. Yes. Women presidents. There is no woman outside the Gandhi family who has been the president of नहीं, the Congress party. any president तो Sarojini Naidu हैं. Founder, I mean, that is prehistoric. Prehistoric, these are pre-independent. Pre-independent. भाई हम मानते हैं ना 1885 से लेकर के अब तक कांग्रेस का एक इतिहास है, unbroken history of the Congress. But the fact is that they've had Independent India never had a woman president outside the Gandhi family or the Nehru family. Yes, quite true. But still, they were women. Women are competitive within the Gandhi family. It shows that women also has special stake within the Gandhi family. लेकिन प्रदीप जी ऐसा है भाई आप जो मर्जी कह लें, fact is a woman is a woman is a woman. I mean, Yes. you can't really kind of So argue. even if it is Parivarvad, it doesn't matter. जी मेरा ये It's कहना very interesting. Now empowerment, we had the Shiv Sena, Uddhav Balasaheb Thackeray group. He said empowerment of women, why can't, no, they have a very good voice where reservations is concerned. Because ultimately who is being empowered? The families that are already empowered. Also, Yes, there has been one more woman. I'm so sorry, Nellie Sen-Gupta. She was also a president of the Congress Party. That was 1933. So there were 5. 5. Bilkul. प्रदीप जी 5 हैं, Bilkul, 5. Yes, yes. माशाल्लाह 5 हैं. और post independence of course we've had Patabi Sitaramaiah, Mr. Mahatma Gandhi's favorite, today being of course October the 2nd, Mahatma Gandhi's birthday. Then we had Purushottam Das Tandon, Jawaharlal Nehru, UN Debbar, Indira Gandhi, Neelam Sanjeeva Reddy, K. Kamaraj, Nijlingappa, Jagjeevan Ram, Shankar Dayal Sharma, Devakanta Barua, Indira Gandhi, Rajiv Gandhi, P.V. Narasimha Rao, Sitaram Kesi, Sonia Gandhi, and Rahul Gandhi, and now of course Mallikarjun Kharge. Right. Chaliye. Now that's a debate which will go on. I fear it will go on for a long time. And at the moment we have Mr. Vinayak Ambekar, our old friend, back after a long time with us. Vinayak Ambekar Sahab, namaskar. नमस्ते सर. नमस्कार सर, नमस्कार. हर हर महादेव. कैसे हैं सर? नमस्कार. कैसे हैं सर? आपकी दुआ है. वंदे मातरम सर, वंदे मातरम. वंदे मातरम. आपको गांधी जयंती की बहुत शुभकामनाएं. आपको भी गांधी जयंती की और लाल बहादुर शास्त्री जी के जयंती की बहुत शुभकामनाएं. जी. और आज की तारीख में जो भारतीय जनता पार्टी ने स्वच्छता अभियान चलाया, मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारा साल चले. मैं सिर्फ 2 अक्टूबर को ही ना हो, हर रोज चले तो बहुत अच्छा है. वी नीड इट. जरूरत है हम लोगों को. Is Mr. Ambekar with us? Mr. Ambekar, can you hear me, sir? I think I can. Yes, sir. All right, fine, wonderful. तो सर ये बताएं कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तो चुनाव का बिगुल बजा दिया है. मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, अब राजस्थान में ज़बरदस्त तरीके से कैंपेनिंग कर रहे हैं. ना जाने कितनी उन्होंने मतलब नए प्रोजेक्ट्स उन्होंने अनाउंस कर दिए. उसके अलावा कांग्रेस की जितनी खामियां हैं वो सबके सामने रख दी. और तो छोड़िए वो कन्हैया लाल जिस बेचारे का मतलब वो क्या है वो सर तन से जुदा ये लोग जो बोलते हैं वो लेकर के एक शरीफ आदमी बेचारा दर्जी अपना काम कर रहा है, उसको जाकर के उसका गला काट दिया. तो मतलब ये कुछ बंद होगा क्या? क्योंकि हाल ही में बाय द वे अभी वो क्या है वो शिवमोगा में अभी दोबारा राइट हुए हैं. लोग तलवार लेकर के तलवार यात्रा ईद उल मिलादुन नबी वाले दिन तलवार यात्रा निकाली. और उसके अलावा 2-3 और जगह पर भी इसी किस्म के नारे दोबारा लगाएंगे. क्या हो रहा है सर, जरा बताएंगे आप? औरंगजेब के तलवार और टिप्पू सुल्तान के तलवार. औरंगजेब की तलवार, वाह कमाल है सर, वंडरफुल. मतलब ये जबरदस्त हो रहा है सर, जबरदस्त. जी बताएं सर. ये सब जो अच्छी तरह से इंडिया इकोनॉमिक प्रोग्रेस कर रहा है जी, उसका जो एक महत्व बढ़ रहा है इंडिया का पूरे विश्व भर में जी, वो जिससे सहन नहीं होता ऐसे कोई तत्व है. वो तत्व ये इंडिया में डिस्टरबेंस लाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं. तो मोदी जी का पूरा प्रयास रहेगा कि ऐसे तत्वों को काबू में लाके पूरी जो इंडिया की डेवलपमेंट की जो मोशन रफ्तार उन्होंने पकड़ी है उसको कायम करेंगे.
और इंडिया को आगे जाके वर्ल्ड नंबर 3 विश्व की पूरी इकोनॉमी बनाएंगे, ऐसा मोदी जी का प्रयास है और वो चलता रहेगा। ये बातें जो है उससे मोदी जी डिस्टर्ब नहीं होते, क्योंकि ये सब बनी बनाई बातें हैं। ये कोई चल रहा है, ये सब जगह पे डिस्टर्बेंस लाना, जैसा महाराष्ट्र में प्रकाश जी आंबेडकर हर 8 दिन के बाद में एक इशारा देते हैं कि आगे चल के बहुत बड़े कोई घटनाएं होंगी, तो उनको कैसे मालूम होता है कि घटनाएं होंगी? तो ये सब चीज विचार करने लायक है, मगर ये सब चीज को गृहीत धरते हुए, इसको पकड़ते हुए मोदी जी ने अपनी चाल चली है। तो मोदी जी भारत को विश्व का तीसरा अर्थव्यवस्था बना के ही रुकेंगे। दुरुस्त बात है, तीसरी नहीं, मुझे लग रहा है दूसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगी अगले 15 साल में, वो भी होने वाला है। जी सर, there is no doubt about it, and in fact according to an IMF report, IMF को कोट कर रहा हूं मैं, we will be able to overtake Germany in March next year and become the 4th largest economy, चौथी लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी भारत की अर्थव्यवस्था मार्च 2024 के बाद। लगे सर आए, एवरीथिंग एल्स रिमेन्स द सेम, कुछ और किए बगैर, मतलब भारत में कुछ और बड़ी चीज करने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार अभी अगर हम लोग चल रहे हैं वैसे ही चलेंगे तो जबरदस्त हो जाएगा। जी प्रदीप जी, आप पूछना चाह रहे थे। अंबेडकर साहब, आज जिस प्रकार से मोदी साहब सवेरे गए महात्मा गांधी जी राजघाट, वहां पर नमन किया महात्मा गांधी जी के सामने, मगर आप मोदी जी ये भी मानते हैं कि स्पिरिचुअल गुरु हमारा महात्मा गांधी जी है, ही बिलीव्स दैट, मगर कांग्रेस ने आज पूरे देश में कांग्रेस ने आज मैं भी गांधी का एक पूरा रैली इस पूरे महाराष्ट्र, पूरे देश में चल रहा था। नाउ दे आर सेइंग कि प्यार और मोहब्बत की राजनीति हम लोग प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, मगर बीजेपी इज प्रोजेक्टिंग नफरत की राजनीति इज डिस्ट्रॉइंग द कंट्री। दैट्स व्हाई द रैली, आज रैली निकाले, मैं भी गांधी, एंड इट वाज ऑल ओवर द स्टेट एंड ऑल ओवर द कंट्री। नाउ डू यू थिंक दैट थिंग्स आर सो बैड कि कांग्रेस को ये रैली निकाल के प्यार और मोहब्बत की दुकान का याद बार बार दिलाना पड़ रहा है? जब उनकी सरकार थी 10 साल, तब कौन सी प्यार और मोहब्बत की राजनीति उनको याद आई थी? अभी जब वो विपक्ष में बैठे हैं और उनको साफ साफ दिख रहा है कि मोदी जी की पॉपुलैरिटी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और उनको काउंटर करने के लिए वो ऐसी हरकतें करते हैं, मगर कोई रैली निकाल के मोहब्बत की दुकान उनकी चलेगी नहीं। वो मोहब्बत की दुकान चलाने के लिए पूरी सोच जो है उनकी वो बदलनी पड़ेगी, और उनकी पूरी सोच जो है वो समाज में अपीजमेंट करके, कम्युनिटी में अपीजमेंट करके, उनमें झगड़ा लड़ाई लगाने की उनकी सोच है, उनका करतूत है। वो सब करतूत लोगों को याद है, तो उनके ऐसे कोई मोर्चा निकाले, रैली निकाले, उसे लोग कोई ये उनके बुलावे में आने वाले नहीं है। लेकिन ये प्रदीप जी, बिल्कुल, ये जो अभी आपने बात बताई, मैं भी गांधी, दिस इज नॉट एन ओरिजिनल आइडिया, एज यू वुड नो विनायक अंबेडकर साहब। जब अन्ना एजिटेशन चली थी तो उस वक्त जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन है उन्होंने वो टोपियां निकाली थी, मैं भी अन्ना, तो दिस हैज बीन इंस्पायर्ड बाय दैट। तो जहां तक कांग्रेस का सवाल है, उनको कोई ओरिजिनल आइडिया तो लाना चाहिए यार। ये मैं भी अन्ना, मैं भी गांधी, मतलब कुछ थोड़ा अजीब लग रहा है। लेकिन एक चीज तो है साहब, जो भी सर्वेक्षण आ रहे हैं, जैसे मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, ये कहा जा रहा है राजस्थान में कांटे की टक्कर है, और पहली बार शायद ऐसा होगा, अगर मान लीजिए जो सर्वेक्षण बता रहे हैं कि अशोक गहलोत जी वापस आएंगे, कि सरकार बदलेगी नहीं, क्योंकि हर 5 साल के बाद वहां सरकार बदलती है राजस्थान में। लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस बड़ी कॉन्फिडेंट है साहब कि वो जीतने वाले हैं। अंबेडकर साहब, आप क्या कहते हैं इसके बारे में, बताएं। देखो, इलेक्शन के जो मतलब सर्वेक्षण होते हैं जी, वो दिन ब दिन और पीरियड वाइज बदलते जाते हैं। तो जैसा कांग्रेस के बाजू में कोई सर्वेक्षण आया रहेगा आपके नजर में, वैसा हमारे नजर में कोई सर्वेक्षण ऐसे भी है कि जहां पे बीजेपी का स्ट्रांग पोजीशन दिखाई दे रहा है। मगर एक बात तो कबूल करनी पड़ेगी कि हम एंटी इनकम्बेंसी का थोड़ा बहुत सामना हमको करना पड़ेगा, और उसके लिए मोदी जी का, अमित शाह जी का, अपने जेपी नड्डा जी का प्रयास पूरी जोर शोर से चालू है। उसमें माइक्रो मैनेजमेंट जो है, वो माइक्रो मैनेजमेंट पे बीजेपी बहुत जोर से काम कर रही है, और मेरी पूरी खातरी है, मेरे को पूरा विश्वास है कि हमारी माइक्रो मैनेजमेंट जो है वो पूरी सक्सेसफुल होगी।
और एमपी में भी हम चुनाव फिर से जीतेंगे। जबरदस्त सर, जबरदस्त। और प्रदीप जी, एक छोटी सी खबर है, इंडिया हैज वन 7 मेडल्स टुडे एज ऑफ राइट नाउ। 5 मिनट पहले 4x400 मीटर्स में वी वन दी सिल्वर मेडल, और 7 मेडल आज जीते हैं 2 अक्टूबर को, तो 60 मेडल तो हो गए साहब। वी वन 60 मेडल्स ऑलरेडी। तो जो 100 इस बार 100 पार, जो मोदी जी ने इस बार सबको चैलेंज दिया था कि इस बार हमें 100 मेडल पार करने हैं, तो उसमें 60 तो हो गए, 60% तो अचीव कर लिया है। जी प्रदीप जी, आप कुछ पूछने वाले थे। अंबेडकर साहब, राहुल गांधी जी आज गोल्डन टेम्पल में थे, राहुल गांधी जी पंजाब, राहुल गांधी जी ट्रक ड्राइवर्स के साथ, राहुल गांधी जी फर्नीचर मार्केट में विश्वकर्मा लोगों के साथ फर्नीचर बनाते हुए ये राहुल गांधी जी। तो राहुल गांधी जी जिस प्रकार से आप देख रहे हो, ही इज ऑन द फील्ड मीटिंग पीपल, बोले कि हम हैविंग डायलॉग्स ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इंडिया। आई थिंक इज ग्रेट ग्रैंडफादर जवाहरलाल नेहरू जी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जैसे राहुल गांधी इज डिस्कवरिंग इंडिया एवरी मोमेंट। बट मोदी साहब ने कहा कि अर्बन नक्सल्स आर रनिंग द कांग्रेस, अर्बन नक्सल्स आर रनिंग द कांग्रेस एंड दीज आर ऑल फोटो अपॉर्चुनिटीज। जो खेत में जाके फोटो निकाल रहे, दिस इज फोटो अपॉर्चुनिटीज, दे हैव गॉट नथिंग टू डू विद द पुअर एंड डाउनट्रॉडन। जो गरीब से गरीब लोगों के लिए इनके पास कोई प्लान नहीं है, कुछ किए नहीं है और आगे कुछ करने वाले नहीं है। कैन यू अंबेडकर साहब जस्ट एक्सपैंड ऑन व्हाट मोदी साहब मेंट? देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जैसे कि कोई अनेक अनेक डिपार्टमेंट होते हैं, जैसा एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है, मगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन सामने लाएंगे तो उसका सीईओ जो होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो क्या करता है, वो कोई ग्राउंड में जाके मार्केटिंग नहीं करता है। वो क्या करता है, तो कंपनी की पूरी मैनेजमेंट कैसी हो, कंपनी का प्लान क्या हो, कंपनी का प्रोडक्शन कैसे चले, उसको डिजाइन करके, उसको एग्जीक्यूट करके, उसको सुपरवाइज करता है और उस पर पूरा कंट्रोल रखता है। तो जिस आदमी को प्रधानमंत्री होना है, उसने कोई भी मंडी में जाके किसी का साथ फोटो निकाला, उससे काम नहीं होने वाला। उसको वो मंडी वाले जो लेबर है, उनकी क्या दुख है, उनके लिए क्या प्लान है, उसके लिए उसको वो प्लान डिजाइन करना चाहिए। अभी राहुल जी ने किसी फॉरेन एजेंसी से सलाह लेके ये सब अपने इमेज चेंज करने के लिए ये सब नाटक किया है, तो ये 100% फोटो ऑप है। और यदि राहुल गांधी देश के प्रॉब्लम सुलझाना चाहते हैं तो उनको ज्यादा स्टडी करना चाहिए, उनको खुद को सब प्रॉब्लम समझ के लेना चाहिए, उनको खुद के आइडिया जनरेट करना चाहिए। वो किधर है आज? वो कोई भाषण करना है, वो भी दूसरे के लिखा हुआ भाषण करते हैं। कोई भी ऐसे आइडिया जो चलाते हैं प्रचार में, वो सब दूसरे एजेंसी ने डिजाइन किए हुए आइडिया चलाते हैं। तो जब खुद के अंदर से कुछ नहीं आएगा तो वो ही कैनॉट लीड द पार्टी। उसके पार्टी में भी किसी को भरोसा नहीं है कि वो पंतप्रधान बन के कुछ काम कर सकेंगे। तो ये सब नाटक करके वो पंतप्रधान बनेंगे ऐसा उनको लगता रहेगा। तो आई विश हिम बेस्ट लक, मगर कुछ भी होने वाला नहीं। लेकिन सर, सॉरी टू ब्रिंग दिस अप, बट जो भारत जोड़ो यात्रा उनकी थी पार्ट 1, उसके तहत हिमाचल प्रदेश में लोग जीते, कर्नाटक में जीते। अब आप ये कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में तो भारत जोड़ो यात्रा गई नहीं गई, मानते हैं, लेकिन उसका इफेक्ट तो था, उसका इफेक्ट तो आप डिनाई नहीं कर सकते सर, सीधी बात है। और भारतीय जनता पार्टी को जितना मैं जानता हूं, भारतीय जनता पार्टी आपका जो थिंक टैंक है, दे वुड बी टेकिंग एवरीथिंग वेरी वेरी सीरियसली, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसी चैलेंज को इग्नोर नहीं करती है, वो छोटे से छोटा चैलेंज भी हो। तो मध्य प्रदेश में आज की तारीख में जो स्थिति है, आपने कहा यू आर डूइंग माइक्रो मैनेजमेंट, उसके बारे में जरा एक्सप्लेन करेंगे? माइक्रो मैनेजमेंट मीन्स व्हाट? बूथ लेवल मैनेजमेंट और व्हाट? इसके बारे में जरा बताएं सर प्लीज। सर, स्टेट इलेक्शन में 2-3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है जी। उसमें एक जो है वो परसेप्शन मैनेजमेंट का एक बड़ा बात होता है, क्योंकि लोकल इश्यूज, स्टेट इश्यूज और नेशनल इश्यूज, तो 2024 के इलेक्शन में भाजपा को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मगर कोई स्टेट में कोई एक परसेप्शन क्रिएट होता है, और वो परसेप्शन क्रिएट करने में कोई भी पार्टी जब यशस्वी हो जाती है, जैसा कर्नाटक में कोई भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया और 40% की बात उन्होंने इतनी चलाई सोशल मीडिया में जो लोगों के दिमाग में बैठ गई। और दूसरी बात उन्होंने चलाई कि हम ये फ्री देंगे, वो फ्री देंगे, मगर आप देखिए 6 महीने के भीतर उनको वो फ्री देने में बहुत डिफिकल्टीज आ रही है, और अभी वो रिवर्ट बैक कर रहे हैं कि ये एक चीज फ्री देंगे मगर पेट्रोल का दाम बढ़ाएंगे, मगर डीजल का दाम बढ़ाएंगे। तो ये सब चीज जो है
जनता जानती है कि ये सब आश्वासन जो रहते हैं वो इलेक्शन जीतने के लिए होते हैं। आज आपका पंजाब में जो प्रॉब्लम हुआ है कि उन्होंने प्रोमिसेस तो बहुत किए, मगर वो सब एक व्हाट्सएप नंबर दिया कि आप खाली कंप्लेंट करो और हम भ्रष्टाचार बंद हो जाएगा। इतना आसान नहीं है ये सब, पूरे ब्यूरोक्रेसी को हैंडल करना, ये जी। पूरे जो सोशल फोर्सेस है, इकोनॉमिक फोर्सेस है, इनको हैंडल करना ये इतना आसान नहीं है। तो ये सब जनता को मालूम है कि ये इतना लेकिन यहाँ आसान पर नहीं है। अंबेडकर साहब, यहाँ पर चार्ज ये लग रहा है कि आम आदमी पार्टी असल में बीजेपी के साथ काम कर रही है, ये कहा जा रहा है। क्योंकि हाल ही में एक हफ्ता पहले, 8 दिन पहले, एक्चुअली 8 दिन पहले, इनफैक्ट 8 days टू द डे, अमित शाह साहब की मीटिंग हुई भगवंत मान साहब के साथ चंडीगढ़ में। उनके साथ एंटी नारकोटिक सेल के बहुत लोग थे, जहां पर उन्होंने कहा कि भाई जीरो टॉलरेंस फॉर ड्रग्स। भगवंत मान जी ने भी ये बात मानी और अरविंद केजरीवाल जी ने भी ये कहा कि पंजाब में और दिल्ली में जीरो टॉलरेंस फॉर ड्रग्स। उसके बाद कांग्रेस के एक एमएलए को अरेस्ट किया गया। ये कहा गया कि ये कांग्रेस का जो एमएलए है आज भी ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन में इन्वॉल्व है, जिसको लेकर के कांग्रेस आपकी तरफ उंगली उठा रही है कि बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को खरीद लिया है। सर, बेसिकली कांग्रेस को शर्म आना चाहिए ऐसी बात कहते हुए कि पंजाब में ड्रग का प्रॉब्लम है, ये सब दुनिया जानती है जी। और दिन ब दिन वो बढ़ते जा रहा है। हमने कोई स्टोरी सुनी कि एक घर के 3 बेटे में से 2 बेटे ड्रग्स के शिकार होके चले गए और वो माँ बाप बेचारे रो रहे हैं, और उसमें सब जो है लोकल पीपल इन्वॉल्व है, पॉलिटिकल पीपल इन्वॉल्व है, हेवीवेट्स इन्वॉल्व है। तो ये सब चीज दुनिया जानती है। तो ऐसे जगह पे कांग्रेस ने उल्टा जो भी गिल्टी रहेगा उसको सपोर्ट करने से अच्छा है कि जनता को सपोर्ट करना चाहिए, जो अच्छा कॉज है उसको सपोर्ट करना चाहिए। मगर कांग्रेस खाली सत्ता की राजनीति चाहती है, इसलिए वो ऐसे गलत आरोप लगा रहे। मैं तो उनका निषेध करता हूँ। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है, प्रदीप जी सॉरी, हाँ, उन्होंने ये भी कहा है कांग्रेस ने कि ये एकदम अमित शाह जी के साथ मीटिंग होती है और उसके बाद कांग्रेस का जो एमएलए वो अंदर जाता है। और कांग्रेस ने ये पब्लिकली बोला है, जग जाहिर तौर पर बोला है, सर पूरी बात सुने, कि कांग्रेस की पूरी मशीनरी अपने एमएलए के साथ खड़ी है और हम उसको कोर्ट में भी डिफेंड करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। सर, अमित शाह जी देश के गृह मंत्री है और एंटी नारकोटिक्स में उनका जो काम है वो दुनिया जानती है कि वो बहुत सख्ती से उसको निपटा रहे हैं। दुरुस्त बात, तो नो डाउट। अमित शाह जी आप कब चीफ मिनिस्टर है करके एंटी नारकोटिक्स में किसी को छोड़ देंगे, या कोई कांग्रेस का एमएलए है करके किसी को छोड़ देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। आपके मुख्यमंत्री के साथ भी वो काम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इशू जो है वो जनता की सर देश का इशू है, सर देश का इशू, नेशनल इशू है, जनता के इंटरेस्ट का इशू है। एक स्टेट में इतना बड़ा सीरियस प्रॉब्लम हो रहा है और उसमें तो हमारे एमएलए तुम्हारे एमएलए कर रहे हैं। जो भी गिल्टी है वो कोई पार्टी का एमएलए नहीं हो सकता, वो गुनहगार है। ऐसा स्टैंड कांग्रेस ने लेना चाहिए था। और यदि वो कोई एमएलए को डिपेंड कर रहे हैं तो वो अपनी खुद की कबर खोद रहे हैं, ऐसा ही मैं बोलूं। प्रदीप जी, केजरीवाल जी के घर के खिलाफ प्रिलिमिनरी सीबीआई इंक्वायरी अंबेडकर साहब लॉन्च करना, केजरीवाल जी यही बोल रहे हैं कि इफ यू फेल इन योर इन्वेस्टिगेशंस विल यू टेक बैक। तो उन्होंने आलोचना करना शुरू कर दिया बीजेपी का, एंड ही सेज हाउ वी आर टेकिंग ओवर आफ्टर दिल्ली का जो सुधारीकरण केजरीवाल जी ने किया, पंजाब में जिस प्रकार से रेवोल्यूशन लेके आ रहा है, बोले दिस इज 50,000 crore इन्वेस्टमेंट हैज कम टू पंजाब, 2,82,000 jobs are being given. बोले कि 2,79,000 MSMEs have been registered. तो today Punjab is become corruption free, where Kejriwal ji है corruption free. Everything is totally, they're working towards corruption. How do you see this statement of Kejriwal that nothing is going to come out of the CBI inquiry against his house, and the way he's developing the Delhi model in Punjab? Ambedkar साहब, 50 करोड़ रुपया खर्चा किया है खुद के बंगले पे, और वो सर सीएम का बंगला, सर खुद का बंगला थोड़ी। अरे सीएम के बंगले पे क्यों ना हो, मगर 50 करोड़ रुपए की क्या जरूरत थी? जो आदमी झोपड़ी में रह के मैं देश की सेवा करूंगा ऐसी बात करता था, शादी वाली गाड़ी यूज करूंगा,
मैं बड़ी गाड़ी यूज नहीं करूंगा, ऐसी जो बात कर रहा था, और जो कैपिटलिस्ट के खिलाफ है, ऐसा खुद को प्रोजेक्ट करता है, तो उसने 50 करोड़ खर्चा करना, और वो खर्चा नहीं कर सकता था, इसलिए उसने उसको 5 डिवीजन में डिवाइड कर दिया, 5 कॉन्ट्रैक्ट में, क्योंकि वो 10 करोड़ के नीचे आए और वो पीडब्ल्यूडी की मान्यता उसको ना लगे। तो ये सब मैनिपुलेशन करने की क्या जरूरत थी फिर, जब वो इतना क्लीन है। आज मैंने उनका भी वीडियो सुना है, वो बोल रहे मेरे अगेंस्ट 19 इंक्वायरीज लगी है मगर कुछ नहीं लगा, कुछ नहीं निकला। तो वो धीरे धीरे निकलेगा ना। 3 मिनिस्टर तो उनके जेल में है, कुछ नहीं है, तो फिर 3 मिनिस्टर सर जेल में क्यों बैठे हैं? कौन 3 मिनिस्टर सर? 2 मिनिस्टर जेल में थे, सत्येंद्र जैन साहब और मनीष सिसोदिया साहब। सत्येंद्र जैन साहब को तो बेल मिल गई है, मेडिकल बेल पे वो बाहर हैं। मनीष सिसोदिया साहब अभी जेल में है। ये तीसरा मंत्री कौन सा है सर? तीसरा मंत्री भी था, मैं अभी नाम नहीं बता सकूंगा। एक जमाने में उनके 3 मिनिस्टर जेल में थे, ये तो कंफर्म है। Okay. I don't remember. There were 2 certainly. At the moment, Mr. Satyendra Jain is out. He has got protection till 9th of October. 9 अक्टूबर तक, मतलब मंडे को, अगले सोमवार को उनको दोबारा सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश होना पड़ेगा। और मनीष सिसोदिया साहब की भी शायद अर्जी जो है वो सामने आ रही सुप्रीम कोर्ट के। लेकिन सर यहां पर आप ये बताएं कि मोदी जी का जहां तक प्रश्न है वहां कोई आर्ग्यूमेंट होती नहीं है। लेट्स बी वेरी क्लियर। मोदी जी का चेहरा सामने आ गया, लोकसभा चुनाव में सबको मालूम है क्या होने वाला है, ठीक है सर। लेकिन स्टेट इलेक्शन में, जैसा आपने कहा, लोकल इश्यूज डोमिनेट करते हैं, स्पेशली प्राइस राइज, स्पेशली यार एलपीजी गैस सिलेंडर की जो प्राइस है, पेट्रोल की जो प्राइसेस हैं, सर उसमें आप लोग रिलीफ कब देंगे? देखिए 200 रुपए रिलीफ देना एलपीजी गैस सिलेंडर, आपको भी मालूम है, मुझको भी मालूम है, कुछ नहीं होने वाला सर। 1150 रुपए का 950 रुपए का हो गया, उसमें क्या होने वाला है सर? वो सिलेंडर की प्राइस वापस अगर आप 450-500 रुपए तक ले आते हैं, वेरी फ्रैंकली ऑपोजिशन के पास कुछ रहेगा नहीं बीजेपी के खिलाफ कुछ कहने के लिए। वेरी फ्रैंकली, मतलब मैं फ्रैंकली बात कर रहा हूं आपसे। तो ऐसा कुछ होगा क्या? कोई सोच है ऐसी अभी इस वक्त बीजेपी में? सर सब्सिडी का जमाना जो है जी, वो कम करना था बीजेपी को, इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन। तो ये जो आप किसी भी अर्थतज्ञ को पूछिए, सब्सिडी देना, सब्सिडी पे देश चलाना, ये अच्छी बात नहीं है। मगर आप जो बोल रहे हैं कि कॉमन मैन को जो परवड़ता नहीं है, तो आज भी जो कोई बीपीएल फैमिलीज है उनको सस्ते में सिलेंडर मिल रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। मगर जिसको परवड़ता है, अभी मोदी जी ने एक अपील किया था कि जिसको सब्सिडी की जरूरत नहीं वो छोड़े, और उनमें से मैं उज्ज्वला गैस योजना चलाऊंगा। तो 1.5 करोड़ लोगों ने खुद होके आगे आके 1.5 करोड़ फैमिलीज ने ये कमिट किया था कि मैं हमारे सब्सिडी दे लो, हमको जरूरत नहीं है। तो जो कॉस्ट है, एक्चुअल कॉस्ट पड़ रही है, वो कॉस्ट को चीज देना ये इकोनॉमी के लिए अच्छा है। मगर आप जैसा बोलते हैं वैसी सोच चलती रहती है। लेकिन अंबेडकर साहब, मैं एक छोटी सी बात आपके सामने रखता हूं, छोटी सी बात, सॉरी सर। देखिए, इट इज एब्सोल्युटली ट्रू कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार जब गई, ये ज्यादातर लोगों को मालूम नहीं है, एंड हैट्स ऑफ टू द बीजेपी बाय द वे। प्रदीप जी, यहां भारतीय जनता पार्टी की तारीफ करनी होगी। बीजेपी ने ये फिगर्स कभी रिवील नहीं किए, ये बाद में आए, जब इकोनॉमिक सर्वे में था तब आए, और उसके बारे में ज्यादातर प्रधानमंत्री जी ने भी खुद ने बात नहीं की है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के जमाने में जबरदस्त सब्सिडी दी गई थी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर, जिसकी वजह से द कॉस्ट ऑफ पेट्रोल वाज 65 रुपीज, द कॉस्ट ऑफ डीजल वाज 60, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एलपीजी गैस सिलेंडर वाज एट अबाउट 500 और 550 रुपीज। और उसको लेकर के हमारी जितनी भी ऑयल कंपनीज हैं, ओएनजीसी हो गई, उसके अलावा हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो गया, इंडियन ऑयल हो गया, ये सब घाटे में चल रही थी कंपनियां। सर आज की तारीख में विनायक अंबेडकर साहब, अब तो 2014 के बाद ये सब लोग इक्वल आ गई हैं, सब लोग प्रॉफिट में हैं, तो अब तो सब्सिडी रिस्टोर कर सकते हैं ना सर। और ऊपर से इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइसेस भी नीचे हैं, तो नाउ एटलीस्ट यू कैन गिव सम रिलीफ इन टर्म्स ऑफ पेट्रोल, डीजल एंड एलपीजी टू द पीपल। विनायक अंबेडकर साहब जी, ये तो जो पॉलिसी डिसीजन है वो ऊपर सेंटर वाले लोग लेते रहेंगे। लेकिन सर आपका फीडबैक जाएगा तो अच्छा होगा ना। जरूर देंगे सर, जरूर देंगे। मगर एक बात ध्यान में रखिए, कांग्रेस ने जो सब्सिडी दी थी उसके वजह से उन्होंने 60,000 करोड़ रुपीस के पेट्रोल बॉन्ड्स क्रिएट किए थे, जिसका भुगतान मोदी सरकार को करना पड़ा, और वो उसका इंटरेस्ट में भी बहुत पैसा गया है देश का।
और यदि देश को विकास चाहिए, देश की जनसंख्या जो है, आबादी जो है वो बड़ी स्पीड से बढ़ रही है, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उनके लिए रोजगार चाहिए, उनके लिए नया प्रोडक्शन चाहिए, तो ये सबके लिए पैसा तो लगेगा ना। पूरा पैसा जब सब्सिडी में चले जाएगा तो फिर देश के डेवलपमेंट के लिए क्या बचेगा? जैसा हम बोल रहे हैं कि कर्नाटक फिर डेवलपमेंट में क्या करेगा? आज बेंगलोर के इतने प्रॉब्लम है, मेट्रो में, बेंगलोर मेट्रो में प्रॉब्लम है, सब जगह प्रॉब्लम है, पंजाब में भी बहुत से प्रॉब्लम है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप नहीं हो रहा है उधर। तो ये सब के लिए पैसा कब आएगा? और आप जो बोल रहे हैं कि 50,000 का इन्वेस्टमेंट, 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया, जैसा ही उनका गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हो गया, पहले तो उन्होंने क्या काम क्या किया रहेगा? तो केंद्र के लिए एक डिमांड भेज दिया, 50,000 करोड़ रुपए हमको दे जी। दो करके, ये भी आपने सुना रहेगा। तो ये सब लोग क्या करने वाले हैं? अपना जो खजाना है वो खाली करने वाले, और फिर सेंटर के तरफ हाथ उंगली उठा के आप लोगों को गुमराह करने वाले हैं। तो ये सब चलेगा नहीं, जनता सब जानती है। अंबेडकर साहब, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, Modi साहब says it's a great achievement in India's democratic process, empowerment of women। और ये बीजेपी का इलेक्शन कैंपेन में सब जगह मोदी साहब नारी शक्ति वंदन अधिनियम का तारीफ करता है कि 27 साल बाकी लोग सोचते रहे, हमने 2 दिन में क्लियर किया, एक दिन लोकसभा में, एक दिन राज्यसभा में। 27 years only people were thinking we have cleared in 2 days, but the Congress says it's another jumla. Congress says it's another jumla like अच्छे दिन, it's like another jumla like 15 लाख, because इसका डेट अभी तक तय नहीं, कब इंप्लीमेंट होगा। One second, Pradeep ji, sorry, they are sorry. saying that जी। we will not allow another jumla to take place। अंबेडकर साहब, सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि फर्स्ट स्टेप हैज बीन टेकन। आपको वो तो मालूम है कि जर्नी ऑफ 1000 माइल स्टार्ट्स विद फर्स्ट स्टेप। तो कांग्रेस ने 27 साल में ये फर्स्ट स्टेप क्यों नहीं लिया? ये फर्स्ट स्टेप तो हमने लिया ना। तो ये सब जनता जानती है कि ये फर्स्ट स्टेप इन्होंने लिया है, इसके कोई बंधन रहेंगे, इसके लिए कोई अवेलेबिलिटीज तैयार करनी पड़ेगी, और वो होगी, क्योंकि ये रिजर्वेशन देने से नारी शक्ति की ताकत सच्चाई में बढ़ेगी। तो ये फर्स्ट स्टेप बीजेपी ने लिया है, ये 100% ट्रूथ है। कांग्रेस कुछ भी बोले, उसको जुमला बोले या कुछ भी बोले, मगर महिलाओं की तरफ से इसका जो स्वागत किया जा रहा है वो बहुत हार्ट वार्मिंग है। विनायक अंबेडकर साहब, करेक्शन, स्मॉल करेक्शन सर। आपने कहा मनमोहन सिंह सरकार ने 60,000 करोड़ के ऑयल बॉन्ड्स इशू किए, ये आपने कहा। सर 70,000 करोड़ का तो इंटरेस्ट दिया है अभी मोदी सरकार ने ऑन द ऑयल बॉन्ड्स। सर द ऑयल बॉन्ड्स दैट वर इशूड वर वर्थ 1,30,701 करोड़। करेक्ट। 1,30,701 करोड़ सर, उसमें Yes, sir, 70,000 yes, करोड़ का इंटरेस्ट गया है। जी, तो अब ये सर एक्सेप्टेड। और वो अगला इंटरेस्ट विल बी ड्यू ऑन इन 2026। तो मतलब अगले 10 साल के लिए दीज ऑयल बॉन्ड्स विल हैव टू बी रीपेड। अब वो रीपेमेंट कैसे होगी मुझे मालूम नहीं है, शायद इस वजह। और आप जी, इस वजह से ही वो इतने जल्दी जो सब्सिडी है वो बढ़ा नहीं सकते। जी सर, I hope they do, because otherwise the BJP is in trouble. Let me tell you this very frankly, because people are used to subsidy. If you take it all away, people are not going to forgive you. It's a very small thing, but you'll have to do it at least for the elections. Pradeep ji, please. now, Modi साहब, during all the campaigns in Madhya Pradesh, Rajasthan, अलग अलग, तो ही स्ट्रेसिंग ऑन आवास योजना में बोला हर घर के ऊपर, हर सर के ऊपर छत। दैट्स द बीजेपी एंड मिस्टर मोदीज अल्टीमेट जो डिसीजन है कि होगा ही होगा, किसी हालत में होगा। तो कंबाइंड विद दैट यू हैव द हर घर नल से जल, शौचालय, हर घर में शौचालय, आवास योजना, जितने आपके जो रिपोर्ट कार्ड है, इट्स एब्सोल्युटली फैंटास्टिक रिपोर्ट कार्ड, फ्रॉम नेशनल अचीवमेंट्स टू इंटरनेशनल अचीवमेंट्स to going to the homes of people and आज स्वच्छ भारत। बट ये जो कांग्रेस के गरीब कल्याण योजना है, 11 वचन, 9 वचन, 6 वचन, 5 वचन, सब जगह जाके जो वचन दे रहे हैं, तो इट्स गोइंग टू बी अ बिग फाइट बिटवीन मोदी साहब रिपोर्ट कार्ड एंड द गरीब, बिकॉज जो भी कांग्रेस बोल रहे हैं, people are falling for it. Like in Karnataka, people fell for it and people want such schemes. तो अंबेडकर साहब आपके सामने बहुत बड़ा चैलेंज है।
How you think you're going to meet the challenge? सर बेसिकली आप जो पॉइंट रेज कर रहे हैं कि कर्नाटक में लोगों को जो भूल भुलावे की योजना दी गई उसका इफेक्ट हो गया, इसके ऊपर बीजेपी में बहुत मंथन हुआ है, चालू है। और एक्चुअली क्या रीजन है कि भाजपा का कर्नाटक में पराभव हो गया या वही फेल शॉर्ट, ये सब चीजें वो लोग जानते हैं या सोच रहे हैं या शोध रहे हैं। तो ये सब चीज तो उनके दिमाग के सामने है और इसका सबका समावेशन ये माइक्रो मैनेजमेंट में आता है कि कर्नाटक में क्या हो गया, उसका सीख लेके मध्य प्रदेश में क्या करना है, उसका सीख लेके राजस्थान में क्या करना है। ये सब करने के लिए बीजेपी सदैव तत्पर रहती है। ये काम मैं भरोसे से कहता हूं कि ये काम चालू है और इसके ऊपर के उपाय जो रहेंगे कि जो भी करना है। और मैं तो ये मानता हूं कि मोदी जी और शाह जी ये इलेक्शन मैनेजमेंट में बहुत माहिर है और उनके जैसा इलेक्शन मैनेजमेंट आज तक इंडिया में किसी ने नहीं किया। तो मैं होप करता हूं कि ये सब मुद्दे जो है वो उनके दिमाग के सामने है, उनके आंख के सामने है। लेकिन विनायक अंबेडकर साहब जरूर विचार करते। विनायक अंबेडकर साहब, आपने एक बात कही, आपने कहा कि कर्नाटक में 40% की सरकार, 40% की सरकार, ये मुद्दा चल गया कांग्रेस का, वेरी फ्रैंकली, बिकॉज सोशल मीडिया पे हर जगह पे। अब वही चीज वो मध्य प्रदेश के लिए कह रहे हैं। वो कहते हैं 50% की सरकार, 50% वाली सरकार, वो मुद्दा भी चल रहा है मध्य प्रदेश में सर। तो उसको आप कॉम्बैट कैसे करेंगे, उससे लड़ाई कैसे करेंगे सर? क्या ये एक वजह, पूरा सवाल सुनने सर, क्या ये एक वजह कि केंद्र के काफी दिग्गज मंत्री और केंद्र के काफी दिग्गज मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, उनको इस बार एमएलए की टिकट दी गई है मध्य प्रदेश में, क्योंकि आपको लगा कि शायद आपको दिग्गज नेता चाहिए मध्य प्रदेश में कांग्रेस के इस आंदोलन को, कांग्रेस के इस कैंपेन को कॉम्बैट करने के लिए? विनायक अंबेडकर साहब जी, कर्नाटक में 40% का जो मुद्दा कांग्रेस ने उठाया था, इट वाज सपोर्टेड बाय सम फैक्ट्स और कोई मिनिस्टर के ऊपर कार्रवाई करनी पड़ी थी बीजेपी को और उसको रेसिग्नेशन देना पड़ा था। ऐसा मध्य प्रदेश में कोई भी चीज नहीं है और मध्य प्रदेश में ऐसा 50% का इतना कैंपेन नहीं चल रहा है क्योंकि उनके पास प्रूफ नहीं है, सबूत नहीं है। ये सब हवाई मुद्दा है। एक कर्नाटक में एक मुद्दा उन्होंने उठाया, उसमें सक्सेस मिल गया करके वो मध्य प्रदेश में उठाएंगे, जबकि ग्राउंड फैक्ट वैसी नहीं रहेंगी। तो जनता इतनी तो भोली नहीं है। वो उनका समाधान का, कांग्रेस का मानसिक समाधान होगा कि हमने कोई तो भी बहुत माहिर मुद्दा उठाया है, मगर उसको कोई वैल्यू जनता नहीं देगी। तो आपके मुताबिक सर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में क्या होने वाला है? क्या बीजेपी जीतेगी या मुश्किल लग रहा है आपको? बिल्कुल मुश्किल नहीं लग रहा है। बीजेपी कोई भी इलेक्शन लड़ती है तो वो जीतने के लिए ही लड़ती है। वैसा इन तीनों स्टेट में हम लड़ेंगे तो खाली जीतने के लिए ही लड़ेंगे और जरूर जीतेंगे। और तेलंगाना में सर, तेलंगाना में भी बहुत मेहनत की गई है। हैदराबाद में, फॉर एग्जांपल, हैदराबाद की म्यूनिसिपैलिटी में बीजेपी जीती है, बहुत ज़बरदस्त वहाँ पर परफॉर्मेंस रही है। तो तेलंगाना में क्या लग रहा है कि बीआरएस तो बहुत कॉन्फिडेंट है, केसीआर साहब तो कहते हैं कि यहाँ पे बीजेपी का तो कोई नामो निशान ही नहीं है सर। जब नाम निशान नहीं है तो हैदराबाद में बीजेपी चुन के आई है, आप ही बोल रहे हैं ना जी। तो उनका स्टेटमेंट खुद वो कॉन्ट्राडिक्टरी है और उनका ऐसा है कि उनको एक नेशनल एम्बिशन तैयार हो गया और वो इधर उधर भटके तो वो जीत के आएंगे, ऐसा थोड़ा ही है। जैसा चंद्रबाबू नायडू का था कि वो एक चीफ मिनिस्टर में पॉपुलर रहे, तब उन्होंने, उनके दिमाग में नेशनल एम्बिशन क्रिएट हो गया और फिर वो खत्म हो गए तो आज वो जेल में ही जाके बैठ गए। तो ऐसा ना हो, इतना ही। तो वो तो आपके कहने पे जेल भेजा गया सर उनको, ये सुनने में आया। कैसा भी हो मगर अंबेडकर साहब, आप बोलिए सर, बोलिए। नहीं, कैसा भी हो मगर कुछ किया है तो ही जेल में गए ना, कि उठा के जबरदस्ती जेल में गए हैं वो, ऐसा तो नहीं है। और प्रदीप जी, एडीएमके के साथ करार भी टूट गया। 300 करोड़ का स्कैम था, बोले कि 300 करोड़ खाए बस, और कुछ सिर्फ एक ही स्कैम है, सिर्फ 300 करोड़। अंबेडकर साहब, राहुल गांधी जी का चार्ज है आप पे कि द प्राइम मिनिस्टर मोदीज साइलेंस ऑन मणिपुर इज डेफनिंग। बार बार वो बोल रहे कि 150 दिन हो गए, मोदी साहब अभी भी एक्टिव नहीं है। He is not calling an all-party meeting. That's what they say. The CM should be replaced. The CM, why is Prime Minister not saying that the CM is should be replaced? He says this is not the priority of Mr.
Mr. Modi and Mr. Modi only जैसे Parliament बोला listens to two people, that is one is Adani and one is Amit Shah. तो how are you going to correlate this? हर चीज में. दिस इज हम्बक. बेसिकली मोदी जी ने पार्लियामेंट में मणिपुर पे भाषण दिया है, जिसको राहुल गांधी ने ना सुनते हुए पार्लियामेंट से सभा त्याग किया है. दूसरी बात ऐसी है, अमित जी शाह ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है, उसमें कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव थे, तो ऑल पार्टी मीटिंग बुला के उन्होंने सबको एक्सप्लेन किया क्या ग्राउंड रियलिटीज है. और जब एथनिक प्रॉब्लम है तो उसमें मोदी जी को ये करके टारगेट करके चलने से उन्होंने अपने लोगों को उसमें हेल्प कैसी करनी चाहिए ऐसा सामने आना चाहिए था एज ए रिलायबल रिस्पॉन्सिबल अपोजिशन पार्टी. तो ये उनका छोटा सोच का ये है, प्रूफ है कि उनको कोई देश के इंटरेस्ट नहीं है, उनको मिजोरम के पीपल के वेलबींग के लिए इंटरेस्ट नहीं है, उनको खाली मोदी को नाम You mean रखना Manipur, है. sir? और मोदी, You mean Manipur, not Mizoram, Manipur. सॉरी, मणिपुर में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं जी. है, मणिपुर के लोगों के वेलबींग के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं है, और उनको खाली मोदी के लिए नाम रखना है. तो मोदी के दोष निकाल के हर रोज कोई ना कोई तो भी स्टेटमेंट करना, इससे राहुल गांधी कभी भी बड़े नहीं होंगे. उनको ये समझ में नहीं आता है क्योंकि वो खुद के दिमाग से नहीं चलते, वो फॉरेन एजेंसी के दिमाग से चलते हैं. तो अभी एक इंडिया में एक प्रॉब्लम है कि मोदी को गाली दो तो तुम प्रेस में रहते हैं, मीडिया में रहते हैं, तो उतना वो खाली एक बेनिफिट ले रहे हैं कि मोदी को हर रोज सुबह शाम गाली देंगे तो टीवी और सब मीडिया जो है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उनको कवर करेगा. तो जो पब्लिसिटी आज उनको चाहिए, सब पब्लिक के सामने Right. रहना है, तो उनको मोदी को गाली देना पड़ता है. उसको क्या करेंगे? विनायक अंबेकर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस. सो नाइस ऑफ यू. बड़े दिनों Yes, के sir. बाद आप हमारे साथ आए. आपको वंदे मातरम. थैंक यू सो मच सर. वंदे मातरम. जय हिंद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी. थैंक यू सर. जय श्री. Well, the BJP seems confident. That's what they say at least. I mean, they're not expected to say anything else, are they? It is a Modi-led, battle. But For that's the 5 exactly- states. The same It's thing Modi- happened in Karnataka and in Himachal Pradesh. But he takes the blame for everything. Mr. Modi says, if anything, if you lost, I am at loss. Yes. I take the blame for everything. Right. Now we have Mr. Balaji Gade Patil with us.